अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी फैक्ट फाइंडिंग की मदद May I say, Honorable Congress President, to send a fact-finding team headed by our senior leader, Srimati Nipada Munshi. All of you know her, and we are very thankful. And we have former Women Commission Chairman of Mahila Congress All India State, Shobha ji. And we have three prominent active members of Parliament. Shri Ranjan ji from Rajya Sabha, Srimati Jyoti Mani ji, Member of Parliament from Lok Sabha, Tamil Nadu, and Praniti Shinde ji from Maharashtra, he is from Lok Sabha, and our leader of opposition, Ramchandra Kadambi, is also here. I, on behalf of the Congress, Pradesh Congress Committee, welcome the chairman and the members of the committee. Based on friends in Congress provided Odisha. At the same time, our friends of media, and HR officer in testing is available here. I also welcome you all. Today, they will speak you, communicate you their sense of feeling and further what they are going to do. For last 4 days they are here. They have visited 2 cases of rape victims in Gopalpur, Ganjam, and in Gandhar district they are Tikawari, and Future district they have visited Harichandrapur. And they have taken entire brief from different persons and from DCC and other stakeholders on the issue of women atrocity, missing, rape and gang rape. And today they are going to address you. They will express what they are going to do. And I, as a business president, along with that, we had been to IG Track, who is looking after women atrocity and child abuse. We had a discussion for about 40 minutes also. But our committee concern was there. They wanted to meet the minister and chief minister of Odisha. For last 4 days we have been contacting CM's office. Their staff were saying that they have heard the matter, CM has heard the matter and like to give the appointment. But sorry to say that he has not given appointment to the committee. I was also there with the committee. I had written the letter, and for the first time on this issue also I wanted to meet the Honorable Chief Minister and advise him with a positive note that what is to be done in future. But I think our Chief Minister and the BJP government of the state is not concerned, not serious, and neither they have done any remedies so far, even they are not interested to be seen from us. This is what I wanted to communicate to. And I would now request Honorable Nipada Munshi to address Nipada.
माइक लग PCC President Bhaktacharya Das ji, our CMP leader Ramchandra Kadam ji, our fact-finding committee colleagues Ranjita Ranjan ji, Praniti Shinde ji, Shobha Ojha ji, Jyoti Mani ji, and all our journalist friends of Odisha. हम लोग आज बैठे हुए हैं प्रेस के सामने. वी आर इन अ वेरी हेवी हार्ट. पिछले 4 दिनों से हम लोग जहां पे गए महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार देखे हैं, सुने हैं, गांव वालों से सुने हैं, परिवार से सुने हैं. जो गरीब परिवार में बच्ची खो जाती है या बच्ची का रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है या बच्ची को मारा जाता है, उस परिवार की माँ, पिताजी सबसे हम लोग सुने हैं. हमें लग रहा था कि और भी बहुत जगह जाए, लेकिन एक एक जगह में, हर एक जगह में जाके इतना दुखी हो गए हम लोग कि अगर ऐसी स्थिति पूरे स्टेट में है तो कम से कम मुख्यमंत्री के पास जाके तो हम लोग हमारी बात रखें. लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आप मुख्यमंत्री ना तो महिला को सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना तो महिलाओं के पास से सुनवाई सुनना चाहते. बीजेपी सरकार 1 साल आए हुए हैं, बहुत उम्मीदों के साथ उड़ीसा के लोग बीजेपी सरकार को लाए हैं, लेकिन 1 साल में महिला विमेन एट्रोसिटीज बढ़ गए हैं, रेप बढ़ गए हैं, मिसिंग बढ़ गए हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रहा है. जो मिसिंग डायरी लिखते हैं परिवार, उसको मिसिंग माना जाता है. बाद में उसका जब स्केलेटन मिलता है तब पता चलता है कि क्या हुआ है. एक केस में स्केलेटन मिला तभी पता चला, लेकिन बहुत सारे मिसिंग है जहां पे कुछ मिला ही नहीं तो उनको अभी भी मिसिंग बोला जाता है. मैं एक गांव में आपका पत्रकार बंधु से मिला, वो पत्रकार का बहन मिसिंग है पिछले कई सालों से, कोई खबर नहीं. लेकिन मुख्यमंत्री ना सुनना चाहते हैं और पुलिस के बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कोई सीरियसली लेता ही नहीं. इतना लूपहोल्स हम लोगों ने देखे हैं कि शॉकिंग थिंग्स हैज बीन रिवील्ड, दैट रिवीलेशन हैज कम इन फ्रंट ऑफ अस. Such shocking things I will not disclose here because we have come here because our Bhaktacharya Das ji और CMP लीडर बार-बार हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताए हैं, राहुल जी को बताए हैं, केसी वेणुगोपाल जी को बताया कि ऐसी स्थिति उड़ीसा में है, महिला डरे हुए हैं. अगर कोई माँ अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहती है, गांव वालों ने घेर लिया था कल ये बताने के लिए कि हमारे बच्ची को सुरक्षा दीजिए. तो जहां ऐसी स्थिति है तो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जाए और पता करे कि असल में स्थिति है क्या, लूपहोल्स कहां से है. आज आईजी से भी मिले, वो अनुभवी पुलिस ऑफिसर है, उनको भी लगा. लेकिन मुख्यमंत्री आज तक 1 साल हो गया एक महिला कमीशन बना नहीं पाए, तो महिला जाएगा कहां? ये सुनवाई कहां होगी? कब जस्टिस मिलेगा? ये सब बातें हम लोग जाके हमारी पार्टी के पास अपना रिपोर्ट पेश करेंगे और हमारे साथी लोग जो है वो लोग अपना अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बोलेंगी और फिर आगे कैसे कदम उठाना है वो हम उठाएंगे. हमारे लोकसभा के मेंबर्स हैं, वो लोग लोकसभा में और राज्यसभा की ज्योति मनी है, राज्यसभा में भी ये बात हम उठाएंगे. रंजिता रंजन राज्यसभा से है, बाकी 2 लोकसभा से हैं, वो लोग उठाएंगे प्रश्न. क्योंकि ये हाल उड़ीसा में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये हम नहीं देख सकते. सभी का मन इतना दुखी है, हम लोग इतना हेवी हार्ट लेके हम लोग उड़ीसा से वापस जा रहे हैं.
अगर हमारा मन, हम बाहर से आए हैं, हमारा मन में इतना दुख है, तो यहाँ के लोगों का, यहाँ की महिलाओं के मन में क्या चल रहा है हम समझ सकते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से पूरे ओडिशा के लोगों के सामने हम लोग ये बताना चाहते हैं कि भक्तचरण दास जी ऑलरेडी भूख हड़ताल पे बैठे थे, इस मुद्दा को उठाए हैं, मैंने महिला कांग्रेस भी उठाए हैं, हमारे एक जो महिला एमएलए है वो भी उठाई है विधायक विधानसभा के अंदर सुप्रिया। तो ये बात यहीं तक नहीं रहेंगे, हम आगे इसको लेके जाएंगे। महिलाओं को जस्टिस दिलाने के लिए जितना आगे जाना पड़ा हमारे पार्टी से हम लोग आगे जाएंगे। अभी हम हमारे साथी जो है जो और बोलना चाहती हैं उनको दे रही हूँ, लेकिन एक बात तो आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं कर रहा है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की बात नहीं सुनता है, लोगों के मन में डर है, लेकिन जब तक कोई विक्टिम का परिवार को जस्टिस नहीं मिलता है, जब तक फांसी नहीं होता है आसामी को, तब तक लोगों के मन में डर नहीं है, इसलिए ये चीज बन रही है। अभी मेरी साथी रंजिता रंजन की आप लोगों के सामने बात अभी मेरी दीपिका जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई। देखिए ये अगेंस्ट वुमेन और बच्चियों के लगातार बढ़ रहे रेप, महिलाओं का गायब होना, उनके ऑर्गन्स का भी ट्रेनिंग होना, लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं। और हमारी पार्टी भक्तचरण जी के नेतृत्व में लगातार इन बातों को उठाने का काम कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, फैक्ट फाइंडिंग टीम के तहत हम लोग कांग्रेस पार्टी से आए, महिलाओं के नाते हमारी पार्टी चाहती थी कि और अच्छे से इस बात को महसूस किया जाए, अध्यक्ष चाहते थे कि इस बात को महसूस किया जाए। हम लोग आपके बीच में आए, पूरे उड़ीसा में कई जगह पे 3 दिन लगातार दौरा किया। एक बात तो आपको बता दें, मुझे लगता है कंटिन्यू अगर एक साल भी हम लोग डेली कई 400-500 किलोमीटर चलेंगे भी, तो हर 5 किलोमीटर पे एक परिवार की बच्ची के साथ असॉल्ट हुआ, हर 2 किलोमीटर पे हर बस्ती में एक बच्ची के साथ असॉल्ट हुआ है, एक बच्ची का रेप हुआ है। और उससे भी भयंकर और घृणित कार्य है जो हम लोग आपको कहना चाहते हैं, नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है, निराशा है। सरकार, प्रशासन, ड्रग्स माफिया और ये बलात्कारियों की मिलीभगत है, क्योंकि सबसे अहम बात यह होती है, बलात्कारी बार बार बलात्कार तब करता है जब उसको सजा नहीं होती है, जब उसको पता होता है कि प्रशासन की मिलीभगत रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा जो नक्सल्स है वो ड्रग्स का भी है, सिर्फ दारू का नहीं है, शराब का नहीं है, बहुत बड़ा नक्सल्स ड्रग्स का भी है। ये बहुत बड़ी चेन है जिसके लिए हम सब कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल रहे हैं, सरकार क्यों नहीं मिल रही है, सबकी मिलीभगत है, ये हम लोग कह के जा रहे हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से बच्चों के बलात्कार के बाद, ज्ञान रेप के बाद तब हम लोग घूम रहे हैं, और आज हमारे पास लिस्ट आती है कि संडे को फिर एक बच्ची का रेप हुआ। हम लोग घूम रहे हैं और जहाँ परिवार, जहाँ पे गांव, वहाँ की विक्टिम और जो एक्यूज और प्रशासन, जिस लगातार हम लोग डीएम से मिले, एसपी से मिले, आरआईडी से मिले, हर प्रशासन के आईओ की, एसपी की, डीएम की स्टेटमेंट में डिफरेंसेस है। और एक ही बात सिमिलर सब में समानता थी, वो क्या? एट एनी कॉस्ट हमारी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, ये बिल्कुल झूठ है। ये जो डबल इंजन की यहाँ सरकार है वो बेटी बचाओ नहीं, निश्चित तौर से बेटियों को अगर बचाना है तो निश्चित तौर से इन भाजपाइयों से बचाना है, इस मिलीभगत से बचाना है। हम लोग एज अ राज्यसभा मेंबर, हमारी लोकसभा मेंबर इस मुद्दे
एक महिला है और वो उड़ीसा की है, हम उनके पास वहां लगाएंगे वुमेन कमीशन जो उड़ीसा में 1 साल से है ही नहीं, हम नेशनल वुमेन कमीशन में गुहार लगाने जा रहे हैं और पूरे जोरदार तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सरकार से आंकड़ों की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं फला प्रदेश में है, फला प्रदेश में है। यह किसी प्रदेश की बात नहीं है, ये बच्चों के साथ लगातार हो रहे बलात्कार की बात है, हत्या की बात है, उनकी खुदकुशी की कहने की बात है। सबसे गलत बात यह है कि प्रशासन और सरकार की ऐसी मेरी भनक है कि यहाँ महिलाओं का, उनके बलात्कार का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं, सीधा कह दिया जाता है। एक बहुत नई चीज यहाँ पे सुनने को मिली है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो क्या बच्चियों को फ्रीडम नहीं होनी चाहिए? क्या बच्चियों को अपना साथी चुनने की फ्रीडम नहीं होनी चाहिए? लेकिन यहाँ पे उसकी आड़ में सरकार और प्रशासन जो एक्यूज है, जो रेपिस्ट है, उसको सरेआम बचाने का काम कर रही है, जो घृणित है। ये सिर्फ अशोभनीय नहीं है, घृणित है और हमें शर्म आ रही है एज अ महिला होने के नाते। इन मुद्दों को हम लोग दोबारा से दिल्ली में उठाने वाले हैं, जैसा कि हम सब ने बताया। और हमारी कलीग शोभा जी अपनी बात। रंजिता रंजन जी और हमारी चेयरपर्सन ने आपको अप्राइज किया। मैं एक मुद्दे पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि ओडिशा न केवल देश में महिला अत्याचार के जाना जाना है, पर जो एडवाइजरी यूएस ने अपने सिटीजन्स को दी है, वहां तक ओडिशा वो स्टेट है जहां महिलाएं सेफ नहीं। और ओडिशा में असंवेदनशीलता, सरकार मुख्यमंत्री की असंवेदनशीलता महिला अत्याचार को लेकर जो है वो हमें नीचे तक देखने को मिली। जिस प्रदेश की सरकार असंवेदनशील होती है वहां का प्रशासन भी असंवेदनशील होता है और कोई जवाबदेही तय नहीं होती है, वही हमको नीचे तक देखने को मिली। हम बड़े पुलिस अफसरों, एसपी, आईजी से लेके आईओ तक हम लोग मिले हैं, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतने सीनियर लीडर्स आए, तो क्योंकि हम संवेदनशील थे, हम आईओ तक व्यक्ति से मिलके हमने डिटेल्स ली है। पर दुखद है, शर्मनाक है कि उड़ीसा में जिस तरह से जो एटीट्यूड प्रशासन का है, बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड है। और कौन विक्टिम बन रहे हैं? गरीब ट्राइबल लड़कियां, आदिवासी दलित लड़कियां। और ये जो नंबर है, जो एक नंबर एवरेज नंबर 15 रेप पर डे का है उड़ीसा का, वो नंबर बहुत ही फेक है, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड नंबर बता रहे हैं, अनरजिस्टर्ड नंबर इससे बहुत ज्यादा है। और साथ ही जहां जहां हम केसेस में गए, आधी जगह देखने को मिला है कि जनता शोर मचाती है, तब एफआईआर लॉन्च होता है। आप असंवेदनशीलता देखिए, और अगर जनता का प्रेशर ना हो तो कुछ यहाँ चलता नहीं है। तो बेहद शर्मनाक है। और सबसे शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो एटीट्यूड है, जो केवल नारे देता है पर लागू नहीं करता है, बेटी बचाओ का नारा देता है पर लागू नहीं करता। इतने असंवेदनशील है कि इतने सीनियर लीडर्स आए और मुख्यमंत्री को मिलने का समय नहीं है। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं। धन्यवाद। ज्योतिमणि जी। Good morning to all. First, I would like to appreciate the PCC President Bhakta Charandas ji to take up the women issue, especially the horrible sexual violence against women, get on in the mainstream political party platform. So my chairman and colleagues have already briefed you. I would like to make few brief points. So when we make the family and the public, in general, feeling is women, especially young women, are very unsafe. Even mothers, especially in the constituency of Mr. Chief Minister Konjam, yesterday we went, their villages came to us and said they feel very unsafe and they are afraid of the gang roaming around and harassing their girls. They are even afraid to send their girls to schools freely. So that is the situation in Odisha, especially in the Chief Minister constituency. That speaks a lot.
government figure itself quote 36,000 women are missing and 8,000 children are missing. We found this case in the police stations. When the Tikavali case were being went, we found there is a parents has made a complaint of missing girl with the name of a culprit. But the culprit was not traced for 90 days till the body was found in the neighboring district. So this is why the neglect, this shows how the Odisha police under this government is very lethargic in terms of missing cases, because this whole case, missing case came into the light because the body has found. This number, staggering number quoted by none other than the CM shows that 36,000 and plus 8,000 children is really disturbing to us as a woman from a political party, as a member of parliament. This government has to answer. Hope we will take up this issue to the parliament as well as the president. Odisha PCC also genuinely concerned for this issue more than the scoring the political point. Our PCC president, when we meet the IG in charge of women, women and children, importance of the reducing the cases and put the system in place. So we are here. Unfortunately, US Travel Advisory also quote Odisha as unsafe among 6 unsafe states in the country. So this situation has to be handled well, but BJP government unfortunately known for their lethargic and the very disturbing attitude towards sexual violence against women. We have seen this in the trend from Kathua to Unova. Hope that will not repeat in Odisha. Thank you. And it is also unfortunate that the CM is also the Home Minister, and still he is not concerned about the women's safety in this state. Said everything that has to be put On record. Exactly everything that has been said. I would just like to say one thing. जब मैं उड़ीसा हम लोग आए और अभी आज 4 दिन के दौरे के बाद विजिट के बाद हर एक विक्टिम की फैमिली को हम मिले और मुझे इतना ही कहना मैं चाहती हूँ कि आज बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश के ऐसी कल्चरली रिच स्टेट उड़ीसा में महिला सुरक्षित नहीं है। जब महिलाओं का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था उसी दिन एक गरीब घर में एक बच्ची को मारा दिया गया। मैं खेद व्यक्त करती हूँ और 3 शब्द मुझे उड़ीसा में आके मेरे मन में आते हैं, अराजकता, भ्रष्टाचार और बलात्कार। इसके सिवाय इस स्टेट में दूसरा कुछ हो नहीं रहा है। There is absolute anarchy, there is collapse of administration system, there is collapse of society, क्योंकि किसी के मन में कोई भी डर नहीं रहा है। हर एक 5वें घर में रेप हो रही है, मर्डर हो रहा है। ये रूटीन हुआ है, ये रूटीन हुआ है उड़ीसा में। और दुख इस बात का लगता है कि इस मोदी सरकार के चीफ मिनिस्टर के पास महिलाओं को लेके वक्त नहीं है। They are not serious about the crimes, rapes, atrocities happening on women. It is very deplorable, it is very sad कि ऐसा इस सरकार, ये सरकार हमेशा लड़कियों के बारे में बोलती है, लेकिन आज सीएम हमको वक्त दे देता है। हमको नहीं दिया, जस्ट एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, लेकिन जब हमको वक्त दे दिया जाता है तब महिलाओं का जो उड़ीसा में रेप हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, उनको इंसल्ट किया जा रहा है। और 4 दिन में आप बिलीव नहीं करोगे द काइंड ऑफ शॉकिंग फैक्ट्स जो हम अभी विक्टिम की सेंसिटिव है इसीलिए रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। एब्सोल्युटली शॉकिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं जो हम हमारे पार्टी के लीडर्स को बताएंगे और जो हम सीएम को बताना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीएम के पास महिलाओं के और रेप क्राइम्स को लेके वक्त नहीं है। अराजकता, बलात्कार और भ्रष्टाचार हर घर में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और हम इसका निषेध करके बहुत दुख के साथ वापस जा रहे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सिचुएशन बदलनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जिस तरह से होनी चाहिए हो नहीं रही। दे
दे आर वर्किंग अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर और इसीलिए सारी सिस्टम कोलैप्स हो And now क्वेश्चन के बाद रामचंद्र कदम जी से लीडर वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। क्वेश्चन प्लीज। मैडम से आपने टाइम मांगा था चीफ मिनिस्टर से डिस्कस होगा कि हमारे निवेदन तो क्या आंसर आया? हम लोगों की तरफ से भक्तचरण दास जी ने, यहाँ के जो अध्यक्ष है, उन्होंने टाइम मांगे थे, तो क्या जवाब आया हमें भक्तचरण जी आप बता। हमने चिट्ठी लिखा था, चिट्ठी का जवाब नहीं आया। हमने फोन किया था तो हमको कहा गया कि शायद देंगे, चीफ मिनिस्टर को कम्युनिकेट कर दिया गया है। 2 दिन मैंने फोन पे बात करता, तब तो कम से कम 10 बार फोन किया तो मुझे तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, फोन पे उठाया। उनके तरफ से डीजीपी को फोन किया मिलने के लिए, तो डीजीपी मिलने के लिए तैयार थे, लेकिन कटक को बुलाया। हमने कहा कि क्राइम ब्रांच जो विमेन चाइल्ड हैंडल कर रहे हैं उनसे बात करना चाहेंगे, वो महिला है आईजी क्राइम ब्रांच, उनसे मिलने का हम लोगों ने तय किया। उनकी तरफ से कमिश्नर की तरफ से सुझाव था कि राजभवन अगर राज्यपाल से मिलना चाहते हैं तो मिले, लेकिन प्रोग्राम है महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने का, इसलिए राज्यपाल से मिलने का कोई जरूरत नहीं था। इस संदर्भ में हमने राज्यपाल महोदय से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उड़ीसा के सीनियर लीडर से मिले, तो इसलिए बात ये आपके सामने ओके। दीपा जी आप उड़ीसा से दिल्ली जाके किसको उड़ीसा के बारे में रिपोर्ट देने वाले हैं? जी, किसको रिपोर्ट देंगे? पहले तो बात ये है कि हमारी पार्टी हमें भेजी, लेकिन ये जो मुद्दा है वो राजनीति के ऊपर है। ये मुद्दा है जो महिलाओं के ऊपर बलात्कार और महिलाओं एट्रोसिटीज के ऊपर, तभी महिलाओं को ही भेजा गया है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में। हम लोग रिपोर्ट जरूर हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट को देंगे, राहुल जी को देंगे, और जो नए योद्धा पूरे देश में न्याय दिलाने के लिए घूमे थे, अभी राहुल जी भी बहुत जल्द उड़ीसा में आने वाले हैं सफर में। उनके आने से पहले यहाँ का जो फैक्ट है, जो सच है, वो राहुल जी तक पहुँचाना हमारा काम है, हमारी पार्टी तक पहुँचाना हमारा काम है, और पार्टी का निर्देश में आगे जो करना है हम करेंगे। लेकिन ये बात मैं कहती हूँ कि महिलाओं का जो मुद्दा है यहाँ पे, वो आगे लेके जाना है, और जहां तक जाना है हम लोग चलेंगे। क्योंकि आप लोगों का याद होगा कि एक अंजना की केस में हमारे सरकार भी एक दिन में पलट गए थे, और अब 100 अंजना को दिख रहा है, लेकिन सरकार घूम रहे हैं। यहाँ पे जो लोग रेप किए हैं वो घूम रहा है, कोई सुविचार नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम इसमें रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। महामहिम जी को भी आप मिलेंगे? जी, उनको भी रिपोर्ट देंगे उड़ीसा के बारे में? जी, उनके साथ भी आलोचना करेंगे उड़ीसा? जी, हमारे महामहिम जी से जरूर हम लोग मिलना चाहेंगे, क्योंकि वो उड़ीसा से है, महिला है, और यहाँ के दलितों का और आदिवासी का समस्या से वाकिफ है, और वो खुद महिला होते हुए, आदिवासी होते हुए हमारे यहाँ की बात जरूर सब सुनेंगे, ये हमें उम्मीद है। हम जरूर उनके पास भी समय मांगेंगे। नहीं, नहीं, ये बात सही नहीं है। देखिए, कुछ केस में ऐसा होता है कि विक्टिम का भी साथ बात करना है। विक्टिम का भी रेस्पेक्ट रखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग नहीं मिले, क्योंकि विक्टिम मिलने की स्थिति में शायद नहीं थे। हरिचंद्रपुर में हम लोग भी मिले सबसे, विक्टिम के परिवार से, जहां उनको टांग के पैर में झुलाया गया था, उस जगह भी हम देखे, गांव वालों से बात किए, लेकिन वहां एक ही चीज सामने आया कि जो लैप्सेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है। मैं ये बात इसलिए दोबारा कहना चाहती हूँ, मैं शुरू में भी ये बात कही थी कि हमारे सामने
ऐसे कुछ रिवील हुआ है, वो एक शॉकिंग अंडरस्टैंडिंग जो हमारा हुई है वो हम रिपोर्ट में जरूर लिख के देंगे। उससे पहले हम प्रेस को नहीं बताएंगे। गोपालपुर बीच में क्या दिक्कत? गोपालपुर बीच में तो अभी कुछ भी नहीं है। क्या लगता था? हाँ, गोपालपुर बीच में गए थे आप? देखिए केस टू केस जो हम लोग देखे हैं वो हम यहाँ नहीं रिवील करना चाहते हैं, क्योंकि आपको चीफ मिनिस्टर को वो बताना था, चीफ मिनिस्टर टाइम नहीं दिया। अभी दिल्ली में जाके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, केस टू केस सब कुछ बताएंगे। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या भी बोल दीजिए ना। इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी हमें भेजे है, डिस्कस करनी है, हम पांचों को भी बैठ के डिस्कस करनी है, हमारी पार्टी के लोगों के साथ भी डिस्कस करनी है। प्रेस को बोल के क्या रिवील कर सकते हैं? प्रेस आप लोग तो केस को देखे हैं, केस को समझे हैं, केस को सुने हैं, आप लोग तो रिवील नहीं कर पाए। आप क्यों नहीं रिवील कर पा रहे? क्या गांव वालों बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं वहां जाके बात करके वो उन लोगों को बात सुनवाई करके वो क्यों नहीं रिवील कर रहे? जरूर करेंगे ना, तभी तो हम लोग आए हैं। शॉकिंग बात बताया उड़ीसा में हो रहा है, तो दूसरा स्टेट से उनका पोजीशन क्या है, उड़ीसा पोजीशन क्या है? देखिए हम लोगों ने जो 3-4 दिन दौरा किया, ये सिर्फ 3 दिन का दौरा नहीं है, कंटिन्यू हमारी पार्टी भी यहाँ पे पूरा नेट ऑब्जर्व भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसको हम लोग पॉलिटिकल नहीं बना रहे हैं और ना ही आपके साथ बनाना चाहिए। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत दर्दनाक है और हम नहीं चाहते हैं इसको स्टेट टू स्टेट कंपेयर किया जाए। ये स्टेट टू स्टेट का मामला नहीं है, ये महिलाओं और बच्चियों के साथ, नाबालिग के साथ हो रहे रेप का मामला है, गैंग रेप का मामला है और हम लोग को बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो हम आपको नहीं बता सकते। वो निश्चित तौर से हम लोग ने डिस्कशन किया है। हम लोग पार्लियामेंट में भी आप सुनेंगे, राष्ट्रपति जी से मिलेंगे तो आप सुनेंगे, वहां पे भी हम लोग पहले अपनी पार्टी में डिस्कस करेंगे और वो पॉइंटर्स बनाएंगे। आप लोगों को भी एक पूरी प्रेस विज्ञप्ति, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो अध्यक्ष जी यहाँ बैठ कर, यहाँ की महिला कांग्रेस बैठ के आपको एक एक केस का डिटेल देगी, बशर्ते उस केस में बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये हम पॉलिटिकल नहीं करने आए हैं, इसलिए हम आपको वो चीजें नहीं बता रहे हैं जो हमें जाके दिल्ली में खुला सकते